while I am copying, I think many students have also joined. The question I would like to ask them is that whether I should move this class to Google Meet. The advantage of doing that is that this very irritating 40-minute limit is done. There will be no time limit. I can, in the Google Meet meeting, I can continue the meeting as long as I want. The disadvantage of that is that I would not be able to record the meetings, record the classes. So what is your opinion? Should I migrate to Google Meet or not? Tell me your opinion. I'm asking for your opinion. What do you think? Should I migrate to Google Meet or should I continue in Zoom? As you wish. Essentials of your opinion. The advantage I told you the advantage and disadvantage. Now you decide. Now you tell me. So CRs, what do you think? Continue here, okay. But if I continue here, then the problem is that I will at least 15 minutes per class is wasted for waiting for all students to join. Question is find out. This is my okay. Now, first things first. Yes, Google Meet is okay. One thing. So let us. सर गूगल मीट पे भी होता है क्लास रिकॉर्ड, हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग वाले सब करते हैं. Okay, fine. So सिमरन, तुमको पता है कैसे करते हैं? सर अर्नब सर को पता है. Let's not waste time. You decide among yourself. अपने में आपस में बात डिस्कस करो. फिर सीआर के थ्रू मिलता है. तो गूगल पे मिल जाएगा सर कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो we will tell you how to. आपस में बात कर लो क्लास के बाद. After the classes are over, discuss amongst yourselves and then give me the final report. Okay? अगर तुम लोग चाहते हो कि गूगल मीट में क्लास करें तो गूगल मीट में क्लास होगा. अगर तुम चाहते हो कि जूम में क्लास करें तो जूम में क्लास करें. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. First of all, using KCL and KVL is perfectly possible to solve this problem. Using KCL and KVL also, it is perfectly possible to solve this problem. Okay, and you will get the correct results. You will see in this course that a single problem can be solved in 4 different ways, 5 different ways, 6 different ways. Okay, and in all cases, if you do it correctly, you will always get the same answer. In the question paper, if nothing is written, it is up to you to choose the best possible. Whatever way you feel is the best, you are free to use it. But if the question paper tells you to solve it only in this particular method, then you have to solve it in this particular method. If you solve it perfectly correctly using any other method, you will get 0 from that. Okay. YouTube tutorial দেখে নেবেন. আচ্ছা ঠিক আছে. So how to solve a problem using mesh analysis? First step. Identify the mesh, assign a voltage, assign an unknown current. So how many meshes are there? 3. So 3. 3. 4. 4. 4. What is the fourth mesh?
12 volt to 10 volt. This is one, obviously. So I assign a current of I3. This is I1. So we identify three meshes and we assign three unknown currents. I1, I2, I3 are not yet known. Yes, what is the fourth mesh? Who said four? Three. Sir, So the 12 outer volt to 10 mesh. volt and back 12 volt. Is the outer mesh a mesh? Is the outer mesh a mesh? What do you think? It is not, because it can be divided into loops. The outer mesh, outer loop can be divided into loops. But the meshes we have identified, can they be further divided into loops? No, sir. Outer one is not a loop. Outer The is mesh is the smallest possible loop exactly, or but something. it's not a mesh. KVL is still valid. The outer one, if you apply KVL, perfectly valid, but you cannot say it's a mesh. Okay, so we have three meshes. Okay, so this is the first step. Identify. What is the second step? Apply KVL. Exactly, apply KVL. Apply KVL in each mesh. In terms of unknown currents and resistances. Third one, what will that give us? What will that give us if I apply KVL? What will we get? I1, I2, I3. Yes, but we will get equation in terms of I1, We'll I2. get the equation. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, the equations. Now what is the third step? Solve the equations. Solve the equations. Find unknown currents. Okay. So this is the basic mesh analysis. Okay. So how to use mesh analysis in this problem? For the first mesh, 12 minus 2I1 minus 12 check. Is it okay? Can you write this? So 1 into I1 minus I2 minus I3 12 minus 12, I1 is in this direction and I2 is in this direction. It's I1 minus I2. And here I1 is in this direction and I3 is in this direction. That's why it's I1 minus I3. Check. Check carefully and then. So we can form
this equation. All of you are getting this? I will be waiting till all of you are getting this equation out. Check. सर एक बार वो मार्क करके दिखा दीजिए ना दूसरे कलर से करंट का डिवीजन. देखो यहाँ पर दिया है ब्लैक से. ओके दिस इज सर नोड्स पे जहाँ पे डिवाइड हो रहा है. ये तो मेश एनालिसिस हुआ ना, तो कोई बात नहीं. ध्यान से देखो, हम I1 के बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है. I am assuming that I1 is greater than I2 and I1 is greater than I2. Whenever I make the equation for a given particular node, I will assume that the current corresponding to that particular node is highest. It may or may not be true. Okay, that is not our concern. So 12 minus, here the current is I1. So 12 minus 2 I1. 12 minus 2 I1. This part is okay. 12 minus 2 I1. Yes sir. Right. Next is this 12 ohm resistance. I1 is flowing from top to bottom, and I2 is flowing from bottom to top. सर बस डायरेक्शन को देखना है करंट के. Exactly. This is from A to B. This is from B to A. This one is from B to C. This one is from C to B. Check. सर मेश 1 में 12 के बाद +2 I1 होना चाहिए ना. Plus 2 I1 की सर करंट का डायरेक्शन वही है ना जो आप दिखाए हैं. This is plus minus. This is plus minus. This is plus minus. We are considering that I1 is. We are assuming that I1 is the highest. This assumption may not be true. No problem. अगर assumption गलत भी होता है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं. जब जो भी लूप तुम लोगे ना, assume करो उसका कार्य सबसे ज्यादा है. हाँ तो फर्स्ट लूप लो तो assume करो कि I1 सबसे ज्यादा है. ठीक है. Just check this equation is okay or not. I am waiting. Okay, 10 minutes, 20 Yes, sir, it's okay. Okay, all of you. Yes, sir. Any doubt? Tell me. Any doubts from anyone? Tell me. Getting this? Getting this? Yes, sir. Okay. Who will volunteer for mesh 2? Who is going to volunteer for mesh 2? So -10. Minus 10. Good. Good start. Then -3 I2 very good. plus 12 I2 Wait, minus wait, I1. wait, not so good. Sir, -3 I2 plus I3. No. So -3 I2 minus I3. Minus I3. Why minus? So because So I3 opposite is in direction other of current. direction. Opposite direction. Okay. Then carry on. -12 into I2 minus I1. Minus 12. I2 minus I1. I2 minus I1 Very good. And -2 I2 minus. minus 2 I2. So this should come as I1 minus 17 I2 plus 3 I3, that is 10. Check, everyone check please whether you're getting this or not. Yes, sir. Yes, sir. All of you getting this?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Can I delete this red these things? Yes, sir. Because I need space to write it. Mesh 3, who will say? सर मैश 2 में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो प्लस होगा ना, +3। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पर करंट जैसे -10 ऐसे और सर I2 और I3 का डायरेक्शन तो सेम है ना, तो I2 प्लस I3 होना I2 चाहिए यहाँ ना। पर ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे जा रहा है, इसमें I2, इसमें I3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर I2 इधर I1 तो दिया ही हुआ है, पर हम तो बना के लिखते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग। सर तो नेगेटिव से कोई पॉजिटिव भी वाला डाउट है इसका पूछ क्या? कौन somebody should ask something? सर साइन कन्वेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं केवीएल में, तो डिपेंड करता है तुम कैसे करंट फ्लो ले रहे हो। करंट सर अगर 10 वोल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखो और जो भी लूप हम ले रहे हैं हम ये, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करेंगे। जो भी लूप तुम ले रहे हो उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर करंट फ्लो करे ऐसे, करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन for mesh 2 we have assumed that the current is flowing in 40 clockwise direction. Is it true? Is it okay? Current clockwise flow कर रहा है mesh 2 में, करेक्ट है या नहीं? सर वो इक्वेशन में बस बता दीजिए -10 +3 होगा या -10 -3 होगा। कहाँ बताओ, -10 ले रहे हैं क्योंकि +2 माइनस हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस माइनस। सेकेंड है -3 होगा क्योंकि अगेन +2 माइनस, ब्लैक किंग से जो बना रहे हो देखो, वो करंट के डायरेक्शन से ले रहा है। अब बताओ। सर तो 2I2 तो प्लस होना चाहिए ना, वो क्यों माइनस लिखे हैं? +2 माइनस जा रहा है, और सर करंट के डायरेक्शन में उससे फर्क नहीं पड़ेगा? तो सिर्फ उसी हिसाब से तो प्लस और माइनस मान रहे हैं ना, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से तो हम प्लस और माइनस दे रहे हैं। करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग दिस लाइक दिस वे क्लॉकवाइज। करंट का फ्लो कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। पर्सन हु आस्क्ड प्लीज, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट सर को मेश 1 में हम लोग जो डायरेक्शन लिए थे करंट का, उसमें बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा था करंट, और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। एकदम सर तो साइन का डिफरेंस नहीं होगा? देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। मेश 1 में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था करंट का डायरेक्शन, मेश 2 में पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, इसी वजह से ये यहाँ पर +12 था, यहाँ -10। सर कोई भी मतलब सवाल जो है? हम लोग करंट एज्यूम कर रहे हैं उसका डायरेक्शन लेंगे, बैटरी से वो करंट नहीं आ रहा है, वो करंट हम लोग खुद एज्यूम किए हैं। हम एक एज्यूम कर लेंगे डायरेक्शन, अगर एज्यूमेशन गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर नेगेटिव आएगा। ओके सर, गॉट इट। एजम्पशन कर लो कुछ भी, तो एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस ये बता दीजिए ना। सॉरी कौन, आई कुडंट गेट यू क्वेश्चन, एक बार फिर से बताओ। सर रजिस्टर में प्लस माइनस लिख रहे हैं ना, वो कैसे लिख रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है। पे एज्यूम कर लो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का +2 माइनस, करंट फ्लोइंग फ्रॉम +2 माइनस,
करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा प्लस टू माइनस भी उसी डायरेक्शन में ही होगा। देखो वही क्लियर। ओके सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बताओ मेश 3 में क्या होगा। सर 24 माइनस माइनस 12 I3 माइनस I1। 12 कहां से मिल रहा है? मेश 3 बात कर रहे हैं। 12 तो यहाँ पर है, ये तो मेश 3 का पार्ट ही नहीं है 12 का। So 24 plus 4I3, sorry, 24 minus 4I3 minus 3I3 minus I2 minus 1I3 minus 24 I1, minus 4I3 minus 3। ओके I3 सर minus वो I2. 1 को हम 12 बोल दिए, सॉरी अच्छा अच्छा, माइनस सॉरी। 1 I3 minus I1 equals 0. ऑल ऑफ यू एग्री? No sir, 24 plus 4 into I3 Sir, minus plus I1 4 plus I2. I3. Yes, sir. पोलैरिटी देखो, उल्टा पोलैरिटी है ना। y प्लस, तो तब तो -24 होना चाहिए ना, अगर हम कह सकते हो। डायरेक्शन में अगर तुम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो बिल्कुल सही है। अगर तुम इसको -24 लेके बाकी सबको प्लस करोगे बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, है वो इशू विद दैट। So the equation remains the same even if we use minus. If you multiply this equation, if a is equal to 0, then can we write minus a equal to 0? Perfectly all right, क्या प्रॉब्लम है? सर तो प्लस -3 I3 माइनस I2 थोड़ी होगा, प्लस ना होगा अगर उससे भी लेते हैं तो बाकी कौन तो सा सही है मतलब? बस। और ये भी ये प्लस होगा बता रहे हो? नो सर, ये 3 वाला बस प्लस होना चाहिए। कौन सा प्लस होना चाहिए बताओ? 3 वाला। थर्ड टर्म, 3 और plus 1 दोनों प्लस होना चाहिए। Yes sir, दोनों तो सीरीज में ही है। यस सर, दोनों। पोलैरिटी देखो यहाँ पर, करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चेक द पोलैरिटीज, सिर्फ बैटरी की पोलैरिटी उल्टा है, बाकी का पोलैरिटी सेम। सिर्फ सर करंट अगर बैटरी के डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, एकदम से बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो नेगेटिव लेंगे। इसको माइनस लेके बाकी को प्लस ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बट इन दैट केस तुम्हें I3 को भी उल्टा लेना पड़ेगा। सर तो 4 के साथ I3 minus I1 plus I2 होगा ना? 4 के साथ I3 minus I1 plus I2। 4 तो यहाँ पर है ना, 4 में सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, I2 I1 कहाँ से मिल रहा है तुमको? 4 तो ये नीचे है। सर ऊपर सीरीज में जो है 1 और 3। 1 और 3 सीरीज में कैसे होगा भाई? करंट क्या सेम फ्लो कर रहा है? यहाँ से I3 minus I1 हो रहा है, यहाँ पर I3 minus I2 हो रहा है, they are not in series। अच्छा आगे सर बस वहाँ पर +3 और +1 होना चाहिए, ये वाला नहीं +3 और प्लस होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। यस हाँ, सर। अब ये +4 ही नहीं होगा। अगर ये प्लस हम लोग 20 और +1 होता है तो ये +4 क्यों नहीं? सर क्योंकि फिर +4 से जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रहा है, तो फिर तो माइनस ही होगा ना, -4। करंट इसमें जहां फ्लो कर रहा है प्लस माइनस। अच्छा ये ओके सॉरी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, दिस वाज विद दिस प्लस माइनस, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू 2, ओके। यस सर। इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। ये जो प्लस माइनस लिए थे ना, ये जब हम लूप मेश 2 के बाद का तब का था, इसको हटा देते हैं। सर रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बैटरी में हो रहा है। दैट जनरेटेड दिस कंफ्यूजन। अब ठीक है, सर बैटरी का बस बता दीजिए एक बार। बैटरी का तो यस सर, रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी में ही हो रहा है। रहता है ना, जो लंबा ज्यादा है वो प्लस होगा, जो छोटा है वो माइनस होगा, तो गिवन रहता है। इसमें तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं। करंट अगर बैटरी के पोलैरिटी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट में फ्लो कर रहा है तो एकदम करंट का बैटरी को पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यस सर वही पूछ रहा था। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, सिंपल।
और सर 3 और 1 को सीरीज में लेंगे तो भी सेम ही आएगा अगर वो दोनों को ऐड कर देंगे तो। तो आप बताएं ना, 3 और 1 सीरीज में नहीं है। 3 से फ्लो कर रहे हैं I3 माइनस I2 और 1 से फ्लो कर रहे हैं I3 माइनस I1। 3 और 1 को प्लस कर दीजिए ना, वो प्लस नहीं यस होगा। सर वही चीज आ जाएगा कौन सा 4 सबसे वही into बोल I3 minus I1 plus I2। सर हम लोग अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं सब में कि बिल्कुल अगर बिल्कुल, I3 तुम में अपना का फ्री बोल रहे हैं ना कि तुम दूसरा कन्वेंशन लो, लेकिन बी कंसिस्टेंट। अगर उसमें यही सब चीज जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। सर तो आप I1 में हाँ बताओ। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ सर सही है, प्रॉब्लम सब में पॉजिटिव टू नेगेटिव 2 10 15 20 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम में लेके बैठे रहोगे तो नहीं होगा। तो यही करना है, दूसरा सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये किसी का भी, मुझे भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थोड़ा सा सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। सो अगर इससे इक्वेशन बनाते हैं सर मतलब ये माइनस ही रहेगा 3 और -1 वाला टर्म। अगर इससे इक्वेशन बनाते हैं तो ये आता है -I1 -3I2। ये सब का एक ही रास्ता है, वेल टेस्टेड एंड ट्राइड रूट, दैट इज प्रैक्टिस। सर लेकिन मेस 2 में वहाँ प्लस होगा -10 +3 होगा और +12 होगा और +2 होगा। बताओ फिर से, बताओ क्या बताओ। सर मेस 2 में होगा -10 +3 I2 minus I3 +12 I2 minus I1 +2I। -10, हाँ फिर उसके बाद सब प्लस में रहेगा। केयरफुल, ये जो प्लस है ये मेश 3 के रेस्पेक्ट में है, मेश 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसा होगा। प्लस एंड माइनस इज गिवन